Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's recording session of The Hindu, 31st of July 2023. From today's newspaper, these are the topics which we would be covering. The first is regarding the Bhima Koregaon case or the violence of the Bhima Koregaon. Second is about the mock lynching. Third, Maharashtra's super sugar free. And fourth is about the digital India. Now, coming to the first important topic, that is the Bhima Koregaon case. Recently, what happened that Supreme Court has given bail to the person who was convicted in the violence of this Bhima Koregaon case under UAPA Act. And that person's bail has raised questions on the Supreme Court itself. That the writer is saying the court is doing this on the basis of merit. The court is getting advantages of doing this because it is very difficult to get the bail under the Unlawful Activities of Prevention Act, that is the UAPA. So before we go into detail of the present situation, we should know about this incident or the violence, that is about the Bhima Koregaon. Firstly, let us have a look on the location. It is a village in the Pune of Maharashtra. And this place has a historical significance as well. What kind of historical significance? You must have read the Spectrum book for modern history if you all are the serious UPSC aspirant. So I assume that you must have read in the modern history from the Spectrum book about the various types of the Anglo War. And among those wars, we are having an Anglo-Maratha war. So this village has a historical significance with respect to the Third Anglo-Maratha War. It was around the 1st January 1880. So this war or this battle was fought between the East India Company from the Britishers' side and versus the Peshwas from the Marathas' side. And the most important thing to focus is that this East India Company, the soldiers which fought for the East India Company were mainly occupied of the Dalit community, or you can say specifically the Mahar community or the Mahar community, which is a lower caste. And point to be noted that the main constitutional framer of our constitution, that is Dr. B.R. Ambedkar, also belonged to this community. So what actually happened that this war was between the East India Company and the Peshwas of Maratha. But the pages of this war turned in the casteism, the clashes of the casteism. That this war is between the Peshwas of the higher caste and the Mahad community or the Dalit community of the lower caste. And ultimately, in this battle, the Peshwas lose this war, okay, and the victory was of East India Company, that is the Dalit community or the Meher community. So with the following of this victory, the Dalit community
or the Meher community said that we are establishing or we are celebrating it as a legendary status that first time we had defeated the higher caste people, the Peshwas, and it is a victory for us because they always mistreated us. They always misbehaved with us. They always done wrong with us. So this battle turned into a clash of a casteism. And hence, we can say that it could be a best example for the divide and rule policy of the Britishers. So to fuel this divide and rule policy, what Britishers did, that they said the East India Company will establish a victory pillar in the Bhima Koregaon or the Vijay Stamp in the memories of all those soldiers who fought in this battle. That means East India Company is trying to manipulate, is trying to take in their side to the lower caste people, to the Dalit community against the Peshwas, against the higher caste, and they are building a divide and rule policy over here. And we know that a Vijay stump or the victory pillar is still there in the Bhima Koregaon. So what is the issue? What is this Elgar पर issue? देखो ये जो भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ बना था या फिर जो विक्ट्री पिलर बना था, यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बार विजिट किया अराउंड 1927. ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजिटेड ओवर हियर और इसी विजिट के बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो दलित कम्युनिटी की जो लोग हैं वो हर साल इस विजय स्तंभ पे, इस विक्ट्री पिलर पे मार्च, इसके पास जाके मार्च करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे उस सोल्जर्स को जिसने इस बैटल में फाइट करी, उनको याद करेंगे इन देयर मेमोरीज. सो वी कुड से दैट एवरी ईयर दे मार्च ओवर हियर. ठीक है, तो अभी तो कोई इसका है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है. बट व्हाट हैपेंड 2018 में 1 जनवरी को, जैसे कि हर साल होता है, इनको इस दिन भी मार्च करना था, लेकिन 2018 में इस पूरे केस को 200 साल हो जाते हैं. That means it was the 200th anniversary of this victory. So to celebrate this anniversary, this victory anniversary of 200 years, तो जो 200 से 250 दलित ग्रुप की जो पीपल थे, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था एलगार परिषद. और ये जो ग्रुप है उन्होंने डिसाइड किया कि इस 1 जनवरी से पहले, यानी कि एक दिन पहले 31 दिसंबर 2017 की रात को हम एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें नॉर्मली क्या होगा, कल्चरल इवेंट के अंदर एक स्पीच दिए जाएंगे, जो आपके पास डांस परफॉर्मेंस होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, जैसे यूजुअली कल्चरल इवेंट होते हैं. बट अब यहाँ पे इशू हो जाता है क्योंकि जैसे ही कल्चरल इवेंट होने वाला था उसके 2 दिन पहले की कहानी है, यानी कि 29 दिसंबर 2017 को इनके एक लीडर के जो मेमोरियल है उसको हानि पहुंचाई जाती है. ये जो मेमोरियल है इनको टूटा हुआ मिलता है और इनका कहना है कि जो हायर क्लास की जो डिसेंडेंट पीपल है इन्होंने इस मेमोरियल को तोड़ा है, जिनको हमेशा से हमारे इस विक्ट्री से प्रॉब्लम है, हमारे इस मार्च से प्रॉब्लम है. और कहीं ना कहीं ये क्लैशेस सच भी है क्योंकि ये जो हायर कास्ट की जो डिसेंडेंट है, जो पीपल है, इनको प्रॉब्लम है इस मार्च वाली इवेंट से, क्योंकि इनको लगता है कि इनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है. तो हर बार छोटे मोटे क्लैशेस होते, लेकिन 2018 में ये बहुत ही ज्यादा वायलेंस लेवल पे ये क्लैश जो है पहुंच गया और अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया अंडर द UAPA एक्ट, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट और द प्रिवेंशन. तो अब जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया होगा. Now coming to the what is this UAPA एक्ट. देखो 1967 में इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर हो रही है उसको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है UAPA एक्ट, दैट इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. लेकिन अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है
उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एसोसिएशन अगर एक ऐसा काम कर रहा है जिससे इंडिया की सुवरेनिटी को खतरा होता है, जिससे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होती है, वो सारी एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाए। और इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि सेंटर को अगर लगता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर अनलॉफुल है तो वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू उसको डिक्लेयर कर सकती है और वहां पे पनिशमेंट दे सकती है। लेकिन जब मैं पनिशमेंट के बारे में बात करती हूँ अंडर द यूएपीए एक्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पनिशमेंट? हाईएस्ट पनिशमेंट यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी हो सकती है कि आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, या फिर लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकता है कि जीवन भर आपको जेल में रहना पड़े। और इस यूएपीए एक्ट के अंदर इंडियन या फिर फॉरेन नेशनल दोनों बराबर है। अगर आप इंडियन लैंड से भी ये काम कर रहे हो या फिर फॉरेन लैंड पर बैठे बैठे भी कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जो अनलॉफुल है, तो आपको यूएपीए के तहत पनिशमेंट दी जा सकती है। और जब यूएपीए के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको मैक्सिमम 180 डेज के अंदर अंदर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है आफ्टर द अरेस्ट इन द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। तो ये तो इनिशियल हो गया कि इनिशियली आपके पास यूएपीए एक्ट के जो प्रावधान थे, जो प्रोविजंस थे वो क्या थे। नाउ कमिंग टू द 2004 अमेंडमेंट। देखो सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं उस अकॉर्डिंग हमें लॉ को भी बदलना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी से दैट द लॉ शुड बी अमेंडेड, शुड बी चेंज। और सिमिलरली 2004 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है जिसमें इस यूएपीए एक्ट को बदला गया। और इस एक्ट के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है या फिर जो टेररिस्ट एक्ट है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया ऑफेंस की लिस्ट के अंदर। तो 2004 तक जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी वो सिर्फ ससेशन से रिलेटेड थी, लेकिन 2019 में एक बिल पास किया गया अमेंडमेंट को लेके जिसमें बोला कि जो इंडिविजुअल्स हैं आप उसको भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। पहले होता था कि पर्टिकुलर ग्रुप एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन अब एक इंडिविजुअल भी अगर एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है तो उस इंडिविजुअल अकेले इंसान को भी आप यहाँ पे टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। यूएपीए के अंदर आप उसको पनिश कर सकते हो। और ये जो पूरा एक्ट है अथॉरिटी किसको देता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी to grant the approval of the seizure or attachment of the property when the case is investigated by the said agency. Now, the Act empowers the officers of the NIA of the rank of inspector or about to investigate the cases of the terrorism. अब जब पूरा केस समझ में आ गया है कि भीमा कोरेगांव का मुद्दा क्या था, वायलेंस क्यों हुआ, ठीक है, यूएपीए एक्ट क्या है, तो जब ये बेल देने की बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया है तो राइटर का ओपिनियन है कि ये मेरिट के बेसिस पे हो रहा है कि कुछ ना कुछ फायदा सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है और वो एक बायस वे में ये डिसीजन सुना है। क्योंकि राइटर का कहना है सेक्शन 43D जो है इस एक्ट का वो बोलता है कि कोई भी कोर्ट जो है बेल ग्रांट कर ही नहीं सकता अगर आप में यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड होते हैं कि कोई भी अक्यूजेशन जो है वो ट्रू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ एक सेमिनार में पार्टिसिपेट करना हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऑफेंस किया है अंडर द यूएपीए एक्ट। So this was all about the first topic. Now coming to the next topic, which talks about the mob lynching. Mob lynching is a very serious issue in Indian society. Indian society is broadly divided, or I would say that inequality lies in the Indian society where the rich are becoming richer and the poor are becoming the more poorer. और जो रिचर क्लास है जो कि प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, उन्होंने कभी
ये सुना भी नहीं होगा, लाइक अगर वो सुनते हैं तो उनको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि इंडिया में ऐसा भी हो रहा है, राइट? बट यस, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो आज भी रूरल एरिया में रहती है, आज भी अंडर डेवलप्ड एरिया में रहती है, जाके ना जहाँ ना एजुकेशन है ना अवेयरनेस है। तो वहां पे ये मॉब लिंचिंग वाले केसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ लोकल एग्जांपल्स मैं आप सबको देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सिटी या फिर आप और भी दूसरी सिटीज में आप सभी लोगों ने बजरंग दल के बारे में सुना हो। इनके काफी वीडियोस भी आते हैं, न्यूज भी बनते हैं, that they do not support the couple to romance in the public, to kiss in the public, to hug and make love in the public, right? They have issues with certain topics, certain issues. तो कोई भी जो कपल्स है या किसी भी इंसान को अगर ये ऐसा करते हुए देखते हैं तो ये लोग ग्रुप में आके उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए काउ को लेके, कि सोसाइटी के कुछ लोग, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि हिंदू लोग जो बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में जो गाय है उनकी पूजा की जाती है, तो जो लोग बीफ खा रहे हैं उनके खिलाफ ये वायलेंस करते हैं, उनको मारते हैं, उनको टारगेट करते हैं। और अगर क्लैरिटी दूं तो रिसेंटली एक वीडियो सामने आई थी कि एक पर्सन, he was literally found urinating on the face of a tribal person। इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो क्या हो सकता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही कि वो पर्सन पॉलिटिशियन थे या कोई नॉर्मल पर्सन थे, बट द वीडियो वाज दैट अ पर्सन was found urinating on the face of the tribal person। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे हायर कास्ट लोअर कास्ट को किस तरह से देखते हैं, जहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज के पर्सन को किस तरह से देखा जाता है, जहाँ पे कास्टिज्म के फैक्टर्स को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये इमेजिनेशन कर लिए हैं एग्जाम्पल्स को, तो अब डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे दैट mob lynching is a term which is used to describe the act of the targeted violence by a large group of people। दैट मीन्स एक ग्रुप बनाया जाता है लोगों का जो कि टारगेटेड वायलेंस करते हैं, और ये जो वायलेंस है या तो किसी इंसान के खिलाफ किया जाता है या फिर उनकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाया जाता है, उनका घर तोड़ दिए जाते हैं, उनको और भी जो उनके एसेट्स है उनको बर्बाद किया जाता है। और ये जो भीड़ है, ये जो मॉब है, उनका कहना क्या होता है कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। जरूरी नहीं है वो इलीगल कर रहे हैं, इलीगल का मतलब है कानून के हिसाब से गलत कर रहे हैं, लेकिन भीड़ का कहना है कि हमारी नजरिए से गलत है और हम उनको सुधार रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेस फॉर द मॉब लिंचिंग? रीजन क्या है, इन इंसान के दिमाग में चलता क्या है? पहला, intolerance। People are intolerant in accepting the act of the law and go on to punish the elite person assuming the act to be immoral। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। होमोसेक्सुअलिटी या फिर द मैरिज विद इन द सेम जेंडर, या बहुत ही क्लोज रिलेशन, दैट इज द लिविंग रिलेशंस ऑफ द कपल। तो आज की डेट में लिविंग रिलेशंस जो है लीगल है, आपके पास पूरा कानूनी अधिकार है कि आप एक लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो, तो ये इलीगल नहीं है, आप लीगल काम कर रहे हो। बट सोसाइटी के कुछ लोगों को लगता है कि ये इमोरल है, हम इस लॉ को सपोर्ट नहीं करते, तो ये कुछ भीड़ इकट्ठा होती है। अगर इनको कोई कपल इस तरह से लिविंग रिलेशनशिप में दिखते हैं तो ये उनके खिलाफ टारगेटेड वायलेंस करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। दूसरा रीजन है बायसनेस, जहां पे कास्टिज्म, क्लास, रिलीजन के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, हेट क्राइम्स जो होते हैं।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मूवी आई थी विच इज ऑफ द धड़क, जहाँ पे एक्ट्रेस वॉज द जानवी कपूर एंड द एक्टर वॉज द ब्रदर ऑफ शाहिद कपूर, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो इनकी मैरिज हो जाती है, लव मैरिज होती है और इनका एक बेटा भी होता है। बट जानवी कपूर की जो फैमिली है वो रिच फैमिली होती है और वो इस मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है। एंड लास्ट में देखा जाता है कि जानवी कपूर की फैमिली ही इनका मर्डर कर देती है, इनको छत से फेंक देती है। मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा कि वो हस्बैंड को फेंकते हैं या बेटे को, किसी ना किसी को तो वो नीचे फेंक देते हैं। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, आप कनेक्ट कर सकते हो दैट द कास्ट बायसेस, द क्लास बायसेस, द रिलीजन, right of the cow vigilance and the lack of the speedy justice. बट इशू क्या है मॉब लिंचिंग के साथ? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंसेप्ट है अबाउट द फंडामेंटल राइट, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are so basic and so certain, which we cannot take away from any citizen, so that we could provide, so that we could protect the citizens from the arbitrary actions of the state. और इसी फंडामेंटल राइट में आपके पास आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 और 15 जो है इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो अगर आप किसी भी कपल्स के लिए या कोई भी इंसान के लिए आप मॉब लिंचिंग जैसा काम करते हैं, तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है अंडर द आर्टिकल 14 एंड 19। और आप उस पर्सन की डिग्निटी को भी हर्ट करते हो अंडर आर्टिकल 21। तो यू आर बेसिकली वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन। However, it is nowhere mentioned in the law of the land and is hence simply put as a murder since it has not been yet incorporated under the IPC as well. तो मॉब लिंचिंग क्या है, कॉजेस क्या है, जब सब समझ में आ गया है तब जो न्यूज़पेपर का कंटेक्ट इजीली समझ में आएगा कि जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उन्होंने क्या किया था एक्चुअली 2018 के अंदर गाइडलाइंस दिए थे। कौन से केस में? तहसीन एस पूनावाला वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2018। और इस केस के अंदर देखो, जब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे किसी लॉ के अंदर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई लॉ मेंशन नहीं है। तो जब कंट्री में किसी बुरी चीज हो रही होती है और कोई लॉ नहीं हो रहा है तो जुडिशरी गाइडलाइन जरूर दे देती है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी उन्होंने गाइडलाइन दी दैट इट इज द सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स सरकार की ये हाईएस्ट ड्यूटी है, प्रायोरिटी पे ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द सिटीजन एंड अथॉरिटीज हैव द प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट द विजिलेंटिज्म ऑफ द कंट्री। कि कंट्री में ये जो मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, जो गौ हत्या वाले भी केसेस हो रहे हैं, उनको रोका जाए। It had come with a guideline which included that आपको हर एक जिले के अंदर एक नोडल पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट करना पड़ेगा with the identification of the district block और villages जहाँ पर मॉब वायलेंस हो रहे हैं या फिर लिंचेस हो रही हैं, राइट? तो जब ये गाइडलाइंस दे दी गई है तो जुडिशरी रिमाइंडर देगी कि फिर भी कंट्री में ये मॉब लिंचिंग के केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं। और ये रिमाइंडर क्यों दिया गया? क्योंकि एक पेटिशन फाइल करी गई है बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन हाईलाइटिंग दिस फेलियर। Okay, is this topic clear? I'm giving you 1 minute. If you have any discussion, if you want any discussion or any doubt, please write down in the comment section. We'll surely clear that. Maharashtra. Okay, coming back to our next topic, that is the Maharashtra. आज का जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है उसमें राइटर का कहना है दैट महाराष्ट्र स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बैकबोन की तरह है इस इंडस्ट्री के लिए। फिर भी लेबर के खिलाफ बहुत अनसर्टेनिटीज है,
इनके खिलाफ बहुत ज्यादा जो मिसयूज होते हैं वो सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है। फिर जब बैकबोन है फिर भी इनके खिलाफ इतनी गड़बड़ हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दिस इज द जिस्ट। अब हम जाते हैं राइटर के पूरे डिटेल कंटेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है द महाराष्ट्र इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, राइट। इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, इट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। कैसे पता भाई? तो शुगर कमिश्नर जो है उनके डेटा के हिसाब से 2022 और 23 के अंदर जो नेट एरिया शुगर केन के लिए ग्रो हुआ था वो था 1.487 मिलियन हेक्टर्स, और 203 फैक्ट्रीज जो थी वो स्टेट में थी, जिससे पूरी उम्मीद थी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना था 138 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि भाई महाराष्ट्र स्टेट है शुगर का टॉप प्रोडक्शन वाला स्टेट है। तो यहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे होंगे उनकी कंडीशन तो बहुत अच्छी होगी, बट नहीं। यहाँ क्या होता है, महाराष्ट्र में रबी क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद ये लेबर्स के पास कोई काम नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि महीने के 2 महीने काम है और अब क्या है पता नहीं, हमारे पास अनसर्टेन कंडीशन। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते हुए ये जो लेबर्स है वो कहाँ चले जाते हैं, मराठवाड़ा रीजन, यानी महाराष्ट्र का दूसरा एक हिस्सा है जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है, मराठवाड़ा रीजन, वहां ये लोग चले जाते हैं शुगर की जो फैक्ट्रीज है वहां काम करने के लिए, ठीक है। दैट इज द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस, repeated crop failure, the debt, the acute unemployment create an end more situation for the Marathwada's rural labor. Ultimately, they have to migrate seasonally. तो अब हम बोल रहे हैं कि ये लेबर तो बैकबोन की तरह हुई शुगर की इंडस्ट्री की, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन फिर भी ये जो लेबर्स है इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा ओप्रेस्ड है, बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। तो इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है इनके जो लाइफ में अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट है उन्होंने सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोला कि इस इशू को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। And against this backdrop, it would be critical to examine how seriously the state develop the policies, consistently implement the strategic measures, and existing the labor laws for effective inclusion of the precarious migrant workers. लेकिन अब इस इशू को समझना पड़ेगा कि इनके साथ बुरा हो क्या रहा है। देखो एक मुकद्दम सिस्टम होता है, मुकद्दम सिस्टम का मतलब क्या है, मुकद्दम एक पर्सन का नाम, यानी ये एक पर्सन है जिसको नाम दिया गया है मुकद्दम। ये मुकद्दम क्या करता है, लेबर का कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसका पूरा सेटिंग होता है शुगर फैक्ट्रीज वालों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लेबर है, लेबर को नाम दिया है कोयता। तो ये जो मुकद्दम या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये शुगर फैक्ट्री से एडवांस में पैसा लेता है और बोलता है मैं आपके पास कभी भी लेबर की कमी नहीं होने दूंगा, जब आप बोलोगे आपको लेबर हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको हमें एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। और ये जो लेबर है यानी कि जो कोयटास है वो शुगर फैक्ट्रीज में भेज दिए जाते हैं। तो पूरा काम इस मुकद्दम पे डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली यहाँ पे इनके पावर्स जो है मिसयूज, लेबर को बहुत ही मिसयूज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इको पॉलिटिकल रीजन। जो मुकदम रीजन है ये बहुत ही ज्यादा एक डिपेंडेंट है, लेबर सिर्फ इन पे डिपेंड हो जाते हैं, तो जैसा ये कहते हैं वैसे ही काम करते हैं। मान लो शुगर फैक्ट्री ने 100 रुपया दिया एक लेबर के लिए, लेकिन मुकदम इसको सिर्फ 50 रुपया दे रहा और 50 की खुद खा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इश्यूज है जो कि डेटा में बहुत सारे गैप्स जो कि नहीं दिखाए जाते, जैसे कि वुमेन की फ्लाइट है और चिल्ड्रन है, और ये सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए 2022 में एक सिस्टम लाया गया, टेक्नोलॉजी, दैट इज द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इस एप्लीकेशन के थ्रू
इस पे फोकस करने की कोशिश करी गई कि जो सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं वो किस तरह से कितने हो रहे हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। जो चिल्ड्रन है उनको ट्रैक करके डेटा लाने की कोशिश करी। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है, डेस्टिनेशन एरिया यानी कहाँ से जा रहे हैं, कौन से डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, इसलिए जाना जरूरी था ताकि उनको न्यूट्रिशन इंश्योर करवा पाए, इम्यूनाइजेशन दे पाए, अर्ली चाइल्ड केयर दे पाए, लेकिन अल्टीमेटली इट गॉट फेल्ड। नाउ फ्लाइट ऑफ द वुमेन। देखो शुगर फैक्ट्रीज जैसे कि जो लेबर इंटेंसिव वर्क होते हैं, यहाँ पे कम से कम 40-50 किलो जैसे वजन वो अपने कंधों पे लेके चलते हैं, जो कि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। उनको अल्टीमेटली मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है वो हो जाते हैं, और इनके पास कोई इंश्योरेंस तो है नहीं, कोई रिटायरमेंट का पैसा तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यूनेस्को का ऑब्जर्वेशन कहता है कि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव वाली जो जगह है, यहाँ पे वुमेन की अर्ली मैरिज हो जाती है, फोर्स मैरिज हो जाती है, माइग्रेंट्स, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स होती है एडोलेसेंस, यानी कि प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है 15 से 17 साल की उम्र में, जब उनकी बॉडी बायोलॉजिकली रेडी ही नहीं है, उसी एज के अंदर यहाँ पे प्रेगनेंसी के केस देखे जाते हैं। डिलीवरी जो होती है बेबी की बिना डॉक्टर्स के, बिना कोई ट्रेन डॉक्टर्स या नर्सेस के होती है। फ्रीक्वेंटली चाइल्ड बर्थ होते रहते हैं, कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है 6 मंथ तक, so there are very issues जो यहाँ पे फेस किए जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी 2020, उन्होंने भी एम्फसाइज किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए सबके लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो शुगर की जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके बच्चे भी फिर स्कूल में नहीं आते और उनको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज में काम करने चले जाते। तो इन सब मुद्दों पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द डिजिटल इंडिया। हमारा आज का जो एडिटोरियल है उसमें बोला है कि जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो बढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन फिर भी इंडिया का जो ओवरऑल पोजीशन है दैट इज नॉट गुड। तो उसको समझने से पहले हम डिजिटल इंडिया जो है उसको समझते हैं। ये कैंपेन है जो कि नरेंद्र मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के टाइम पे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसके अंदर इनिशिएटिव ये है कि जो रूरल एरियाज है वहां तक हमें हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रोवाइड करवाना है। 3 की पैरामीटर्स हैं। एक, डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और डिजिटल डिलीवरी जो है यहाँ पे दिया जाएगा। अब इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना, यानी कि जो रिच सेक्शन है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, पुअर सेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसको कम करना। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, सिटीजन को एम्पावर करना, राइट। और जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है वो आसानी से उनके पास पहुंच पाएगी अगर वो इंटरनेट उनके पास होगा, राइट ना। इसके लिए हर्डल्स जो है वो क्या है, यहाँ से हम डेटा की यहाँ पे बात करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट 2016 के अंदर जो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो लॉन्च किया गया, और उसके बाद ये इंक्रीज हुआ। एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ 2020 में, तो जो कैशलेस ट्रांजेक्शन का एक फ्लो चला था उसकी वजह से भी ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, और फिर आपके पास लॉकडाउन हो गए, और जून 21 से 23 का जो डेटा देखा जाता है उसमें 6% की रेट से ये डेटा बढ़ा है। और बाकी मोड के बारे में बात करें, जैसे कि एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है, जो डेबिट कार्ड का पेमेंट करते हो वो सिर्फ 3%, 3%, 1.5% की रेट से आपके पास बढ़ रहा है। यानी यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर बढ़ रहा है तो ऐसे कंसिक्वेंटली जो बाकी पेमेंट है वो यहाँ पे कम हो रही है। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस एडिटोरियल, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है आप साइड से देख सकते हो, बट आपको जो टॉपिक का जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। So this is it for today. Hope you like the video. Please do subscribe it, like and share. Thank you so much.